let us start with the next video, next lesson, that is lesson number 9, discount and commission. Okay, now in 7th standard what we have learned, that is about percentage. Let us revise all those things. Write the appropriate numbers in following boxes. Now 12 upon 100. What is the meaning of 12 upon 100? Means total 100, and out of 100 how many parts are taken? 12 parts are taken. Means 12 out of 100. That means that it is 12%. What is the meaning of percent? Percent means out of 100. Out of 100, 12 parts or 12 points are taken, means 12%. Okay. How do we write this 12%? 12 and percentage sign. This way we write it. 47%. How do we write in numerator denominator form? 47 upon 100. Numerator 47, denominator 100. It means that out of 100, how many? 47. And that means 47%. Then 86% means 86 upon 100. Means out of 100, how many? 86. Then number 4. 4% of 300. 300 का 4% है. अब 100 का 4% नहीं, अब 300 का है. Okay. So 300 multiplied by 4%. 4% means 4 upon 100. Okay. ये 4, what is the meaning of 4%? Means 4 upon 100. Okay. And 4% किसका निकालना है? 300. Then multiply it with 300. Right? What value you will get? So 300 multiplied by 4. Now this 300 is at the numerator place. Okay. 300 multiplied by 4 means 1200 upon 100. These two cancels each other. Okay. What value remains? Only 12. So what is the 4% of 300? It is 12. In this way, all these things we have learned in standard 7. Just we are revising here. Then let us move to next example. 15% of 1700. 1700. Okay. So 1700 multiplied by 15%. 15% means 15 upon 100. Even this we can do by another way also. That method which was not done. Here numerators 2 0, denominators 2 0 cancels each other. This is also one of the method. What is remaining? 17 multiplied by 15. What is the answer of this multiplication? It is 255. So 15% of 1700 is 255. After that, let us discuss point is there. What is it? Now it is given about the discount. Here monsoon sale up to 50%. Means where do we see all these things? We see it in the shops. Mostly even online also advertises are given on the TV channels. Online by these Amazon, Flipkart and all these many websites are there. Okay. There we see. Let us read. You may have seen such advertisements. In such a sale, a discount is offered on various goods. Generally in the month of July, sales of clothes are declared. Find and discuss the purpose of such sales. Okay. तो ये सेल जुलाई महीने में क्यों आता है? Mostly in July, August, on the occasion of 15th August and all that, such sales are given out by the shopkeepers. What is the reason behind this? The reason ये है कि दिवाली के लिए शॉप्स में जगह तो होनी चाहिए ना, दिवाली का जो नया जो माल लेकर आना है वो रखने के लिए, तो ये जो 1 साल पुराना जो मटेरियल होता है वो निकालना पड़ता है उनको, तो इसलिए वो सेल लगाते हैं. ओके. और सेल लगाते हैं यानी दुकानदार को नुकसान नहीं होता है दुकानदार को. ओके. वो कैसे होता है? देन द हियर डाउन साइड वी विल सी वेरी नाइसली इट इज एक्सप्लेन हियर. सो तो उनका नुकसान भी नहीं होता है. ओके. लेकिन कस्टमर को भी फायदा होता है. ऐसा कुछ होता है इस सेल में. Okay, so these advertisements are given for the purpose of clearing the stock of the stores. Then let us learn. Okay, now come to the main point of the lesson. First point, that is discount. Name of our lesson is discount and commission. So now here in this video we are going to see only one point, discount, and then for commission I will send different video, another video. Okay.
लेट अस रीड, मिस्टर सुरेश ओन्स अ साड़ी शॉप। सुरेश के पास एक साड़ी का शॉप है। द डिटेल्स ऑफ सेल ऑफ साड़ीज एंड प्रॉफिट अर्न इज गिवन इन द टेबल। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द टेबल। सेल इन द मंथ, जून महीने में सेल, जुलाई का सेल। ओके, लेकिन जून महीने में उसने डिस्काउंट दिया नहीं है। ओके, इन जुलाई ही हैज डिक्लेयर्ड डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट कितना है क्या है वो देखते हैं। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी, एक साड़ी की कीमत कितनी है 200 रुपीज। जून में भी 200, जुलाई में भी 200। ओके, in the month of June, that shopkeeper was saying that the cost of the sari whose cost is 200, it will be sold at 250 rupees. Okay, उस पर उसको प्रॉफिट मिलेगा 50 रुपीज। ओके, ऐसी अगर if he sold 40 sarees, पूरे महीने में he that Mr. Suresh he sold how many sarees? 40 sarees. So 40 sarees and income of profit of one saree 50 rupees. That way means total how much profit did he earn? rupees 2000. 2000 पूरे महीने का प्रॉफिट मिला उसको। ओके, अब डिस्काउंट का देखते हैं फायदा क्या होता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई ही डिक्लेयर डिस्काउंट। ओके, साड़ी की कीमत 200, तो उसने डिस्काउंट कितना दिया कि उसने 20 रुपीज कम कर दी। सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ 250 ही मेड इट 230। ओके, तो उसको हर एक साड़ी पर कितना मिलेगा प्रॉफिट? 30 रुपीज। ओके, उसका प्रॉफिट कम हो गया, नो डाउट प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन द सेल ऑफ द साड़ीज इंक्रीज एंड इन द होल मंथ ही सोल्ड हाउ मेनी साड़ीज? 100 साड़ीज ही सोल्ड। ओके, तो 100 साड़ीज and the profit of one saree is 30 rupees. Here by mistake, by printing mistake, it is 10 is added here. Okay, so 30 rupees profit per saree and 100 rupees, sorry, 100 sarees he sold. So 30 multiplied by 100, total he got how much profit? Rupees 3000 in the month of July. जुलाई महीने में हर एक साड़ी पर 20 रुपीज का डिस्काउंट, यानी 20 रुपीज से कीमत कम करने के बाद भी उसका सेल बढ़ गया। कीमत कम करने के कारण उसका सेल बढ़ गया, सेल बढ़ने के कारण उसका प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई द शॉपकीपर्स डिक्लेयर डिस्काउंट। लेट अस मूव अहेड। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट द डिस्काउंट इज गिवन ऑन ईच साड़ी during the sale in July. The profit on each saree is less, but the total sarees sold are more. Hence, overall, there is more income for Mr. Suresh. This is the reason why the shopkeepers, okay, यानी 2-3 रीजन होते हैं, उसमें से एक ये रीजन है कि why the shopkeepers declare discount. Moving to next paragraph. Each item to be sold has a price tag on it. मतलब क्या है? जो भी बेचने वाली चीजें होती है दुकान में, हर एक पर प्राइस टैग होता है, यानी प्राइस प्रिंटेड प्राइस होती है उस पर। या तो दुकानदार लगाता है प्राइस, नहीं तो कंपनी लगाती है, लेकिन प्राइस टैग होता ही है। द प्राइस ऑन द टैग इज द मार्क प्राइस। ओके, तो उस वस्तु पर, उस आइटम पर जो मार्क प्राइस होती है, प्रिंटेड प्राइस होती है, व्हाट इज इट कॉल्ड? इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स इट इज कॉल्ड एज मार्क प्राइस। ओके, फॉर सॉल्विंग एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ड्स। रिमेंबर दिस, मार्क प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आइटम। शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। शॉपकीपर डिस्काउंट देता है, किस पर डिस्काउंट देता है? ये जो प्रिंटेड प्राइस होती है, ये जो मार्क प्राइस होती है, इस पर डिस्काउंट देता है। While selling the object, the actual amount by which he reduces the mark price is called the discount. Okay, this is the definition of discount. Okay, ये ध्यान में रखो, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो you can write in your own words also, but meaning यही आना चाहिए। What is it? While selling the object, object का सेल करते वक्त, विक्री करते वक्त, the actual amount by which he reduces the mark price,
यानी ये जो मार्क प्राइस है इसमें दुकानदार कितना कम करता है। ओके, तो जितना कम करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ओके, अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है, अगर वो दुकानदार 80 रुपीज में देता है, यानी उसने 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, राइट, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, देन हेंस, तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है उसकी, जो मार्क प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है उस ऑब्जेक्ट पर, ओके, उसमें से डिस्काउंट माइनस करो। ओके, समझो कोई वस्तु है उस पर 100 रुपीज प्रिंटेड प्राइस है, राइट, उसमें से दुकानदार ने 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 माइनस 20 टोटल 80, तो ये 80 क्या हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। ओके, let us move ahead. Generally, discount is given in terms of the percentage. ओके, तो डिस्काउंट तो ऐसा नहीं होता कि दुकानदार बोलता है हाँ नहीं जाओ इस पर 50 रुपीज, इस पर 70 रुपीज, ऐसा नहीं। तो दुकानदार लोग भी बड़े दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन दुकानदार लोगों का मैथ्स बहुत परफेक्ट होता है। ओके, वो बात करते हैं परसेंटेज में। जनरली डिस्काउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो हमेशा परसेंटेज भर देते हैं। और 20% डिस्काउंट इंप्लाइज दैट an atom should be sold by reducing the mark price by 20%. That is, if the mark price of an atom is ₹100, a discount of ₹20 is given on it. Hence, the selling price of the atom will be 100 minus 20 is equal to 80. As I explain here. Okay. तो दुकानदार क्या बोलता है कि I want to give 20% discount. 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी 100 रुपीज ही विल रिड्यूस 20 रुपीज। ओके, अगर 50 रुपीज का अगर ऑब्जेक्ट है तो कितना कम करेगा वो 10 रुपीज, क्योंकि 20% का मीनिंग वही होता है। ओके, 100 रुपीज का ऑब्जेक्ट है तो उसमें से 20 रुपीज कम करेगा, एंड देन द सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज। दैट इज कॉल्ड 20% डिस्काउंट। ओके, so in such a transaction if the discount is X%, okay, तो ऐसा नहीं कि everywhere only 20% discount is given. Some of the shopkeepers they may say 15% discount, 10% discount, okay, 25% discount, 35% discount. Even on the online shops you must have seen that they give 80% discount, 85% discount. Like this also advertises are there on the online shops. Okay, so what we are going to consider here, we are going to consider discount as X%. X% है ना, वो 1% से लेकर 99% तक कुछ भी हो सकता है। ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम चाहिए। ओके, तो किसी भी दुकान में अगर कहीं गए तो हमें डिस्काउंट कितना होता है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। So, अगर if the discount is X%, then how formula is can be framed? So, X upon 100. What is the meaning of X upon 100? Okay, ये डिस्काउंट जो डिक्लेयर किया है वो डिस्काउंट वो आउट ऑफ कितना दिया है 100। जब हम लोग परसेंटेज में बोलते हैं तो 20% यानी 20 अपॉन 100। यहाँ पर हमने डिस्काउंट कंसिडर किया है X%। सो X अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया है वो, ओके, एंड मार्क प्राइस। ओके, अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिशफल करते हैं, ओके, तो उसमें हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। ओके, तो ये मार्क प्राइस इधर ले लो। अब ये इस साइड में डिनोमिनेटर में, अगर यहां पर लेते हैं तो न्यूमरेटर में। ओके, तो कैसे बनेगा, ओके, इस पर बाद में आते हैं। तो x मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस, x मल्टीप्लाइड बाय ये मार्क प्राइस इधर गया अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। बराबर, ये डिस्काउंट इस साइड का, राइट साइड का, राइट साइड में है x अपॉन 100, और ये मार्क प्राइस डिनोमिनेटर से कहा गया न्यूमरेटर में जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, ये डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू राइट साइड दे हैव रिटन टू लेफ्ट साइड। ओके, कोई फर्क नहीं होता। Discount is equal to X multiplied by mark price upon 100. Discount is equal to mark price multiplied by X upon 100.
ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्स? नाउ सी डिस्काउंट, यानी हमें कितना डिस्काउंट मिलने वाला है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो कैसे काउंट करना है? मार्क प्राइस, यानी उस वस्तु पर जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो. समझो प्रिंटेड प्राइस है 500 रुपीज. ओके ओके, डिस्काउंट एक्स यानी डिस्काउंट. डिस्काउंट दिया है सपोज 40%. 40% डिस्काउंट एंड अपॉन 100, राइट. न्यूमरेटर 20, डिनोमिनेटर 20 कैंसल्स ईच अदर. कैंसिल कैसे हो रहा है? यानी दोनों को 100 से डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट इज रिमेनिंग? 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 200. यानी अगर 500 रुपीज अगर मार्क प्राइस है, ओके, उस पर अगर 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी टोटल कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो? 200 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ऊपर दिया है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस कितनी है यहां पर? 500 माइनस डिस्काउंट कितना है? 200. तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 300. राइट. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्काउंट. Okay, now here in this box very nice information is given. At present, the online shopping of books, clothes, mobiles, etc. is more popular than going to the market. आजकल ये ऑनलाइन का बहुत चल रहा है. ओके, फसादे भी उतने ही ज्यादा है. ओके, तो क्या होता क्या है, कोई भी वस्तु है तो वहां पर दुकान में होती है वो सपोज 200 रुपीज की. ओके, तो कभी कभी ये ऑनलाइन शॉप वाले क्या करते हैं, उसकी प्राइस दिखाते हैं उधर 1000 रुपीज एंड बोलते हैं इधर 50% डिस्काउंट. ओके, फिर भी लूटते हैं. तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑनलाइन शॉपिंग में. ओके, सो द कंपनीज विच सेल देयर गुड्स ऑनलाइन डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन शॉप्स एंड मैनेजमेंट्स. ये उसका फायदा है. ऑनलाइन शॉपिंग का एक फायदा क्या है कि ये कंपनी को क्या करना नहीं पड़ता कि उनको दुकानदार को देना नहीं पड़ता. कोई सेलर नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं होती. बाकी होलसेलर नहीं, रिटेलर नहीं, कोई नहीं. ओके, तो इसका फायदा किसको मिलता है? डायरेक्टली द बेनिफिट इज गिवन टू द कस्टमर. दीज कंपनीज नॉट ओनली गिव अ डिस्काउंट बट ऑल्सो गिव होम डिलीवरी. तो हमारे घर पर भी आता है. अगर हम लोग ऑनलाइन अगर कुछ बुकिंग करते हैं, ओके, देन डायरेक्टली दे गिव द होम डिलीवरी. दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू एवरी वन ऑफ अस. देन सॉर्ट एग्जाम्पल्स आर देयर. हाउ मेनी सॉर्ट एग्जाम्पल्स आर देयर? टोटल 5 सॉर्ट एग्जाम्पल्स आर देयर. You must be having the textbooks. Okay, so let us go through all these 5 examples, short examples, and then now I will directly move to the practice set. Right, all whatever examples are given in the practice set, I will solve all the examples. Let us see first example of practice set number 9.1. What is the example given? If mark price means, once again I repeat it, printed price is equal to rupees 1700. Selling price is equal to rupees 1540. यानी वो दुकानदार कितने में बेच रहा है? वो 1540 रुपीज में. राइट. देन फाइंड द डिस्काउंट. तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? ओके, as I have discussed, what is the formula for the discount? So discount is equal to mark price, I will write it in short, minus selling price. Okay, जो printed price है उसमें से selling price minus करो, discount मिलता है. is equal to rupees 1700 minus rupees 1540 is equal to what answer we get? We get answer 160. Okay, ये 60 और ऊपर के 100, 160. So we have to write answer in words. So answer is the discount
is rupees 160. Right? Let us move to second example. Total 8 examples are there. Now second example. If mark price is equal to rupees 990 and percentage of discount is 10. What discount is declared? 10% discount. Then find the selling price. Okay, we have to find out the answer of it. What is given? What are the given things that we have to write? Mark price. What is the mark price? Is equal to rupees 990. Then how much discount is declared? Discount is declared 10. 10 means what? 10%. Right. What we have to find out? We have to find out selling price. Selling price is equal to what? Okay. So what we have to consider? Let the discount given, यानी पूरा डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट तो मालूम है 10%, लेकिन पूरा डिस्काउंट, लेट द गिवन डिस्काउंट बी रुपीज एक्स. कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो? 990 रुपीज पर एक्स, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं. सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला. सो डिस्काउंट परसेंट यानी परसेंटेज है, परसेंटेज वाइज कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो अपॉन 100. द फॉर्मूला विच वी हैव लर्न इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, यानी जितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो पूरा, ये कौन सा है? परसेंट डिस्काउंट, एंड ये डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस. मार्क प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस. ओके. सो देयरफॉर व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट? 10 अपॉन 100 is equal to discount given. How much discount given? So here given discount we have considered as x. So is equal to x upon what is the mark price? In example it is given, it is rupees 990. So now our equation is ready. So find the value, we have to find out the value of x, means we will get how much discount is given. So therefore x is equal to what we will get? 10 upon 100. Okay, and this 990, it is at denominator's place. If we take it to the left side, it will go to numerator, means it will multiply 10. So it will multiply 10. Right? So 10 multiplied by 990 upon 100 is nothing but the value of x. Let us solve it. Is equal to numerators 10, denominators 10, numerators 10, denominators 10, cancels each other. What is remaining? 1 multiplied by 99 upon 1 means we get directly answer rupees 99, means x is equal to rupees 99. What is x? We have considered as x as given discount. Right? So now total discount is given rupees 99. So we have to find out the selling price. So selling price is equal to, we know the formula, mark price minus discount. Mark price minus discount is equal to, what is the mark price? It is rupees 990 minus how much discount is given? Rupees 99. So 990 minus 99, what number we get? It is 891. Right? So as the question is asked in words, we have to write answer in words. So write here answer. Okay. Answer is the selling price is rupees 891. That's all. Now let us move to example number 3. What is the question? Let us read. If the selling price यानी कस्टमर को कितने में मिलता है वो, is 900. डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20%. ओके, यानी ये डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस फिक्स होती है वो 900 है. ओके, मार्क प्राइस अलग है. देन फाइंड द मार्क प्राइस.
तो अब ये इस एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस. लेट अस सॉल्व. हियर व्हाट वी हैव टू राइट, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आंसर लास्ट में लिखते हैं, उसको आंसर बोलते हैं. ये सॉल्यूशन है. लेट द मार्क प्राइस बी ₹100. ओके, 100 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ये द डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंटेज. ओके, so because of that we have to consider mark price as ₹100. डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, so discount is equal to 20%. It is mentioned here. Okay, so therefore अगर डिस्काउंट 20% है, अगर मार्क प्राइस अगर हमने कंसिडर की है ₹100, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, सो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू, यानी ₹100 के लिए कितना है, ₹20. ओके, ये ₹20 डिस्काउंट किसके लिए, ₹100 के लिए. ओके, तो 900 का हमें फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, तो कितना है मार्क प्राइस, हमने कितना कंसिडर किया है, ₹100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ₹100 के लिए 20. तो कितनी हो गई सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू ₹80. ₹100 के लिए. ओके, यहां पर एग्जांपल खत्म नहीं होता है, ₹100 का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ लेट अस राइट द एक्सप्लेनेशन. इफ द selling price is ₹80, ₹100 के लिए कितनी है, 80. द मार्क प्राइस इज ₹100. यानी अगर मार्क प्राइस ₹100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹80. राइट. देन लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर करना है हमें, दैट मार्क प्राइस इज ₹X. क्योंकि हमें जो एग्जांपल में जो इंफॉर्मेशन दी है, ओके, उसकी मार्क प्राइस मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग उसको X कंसिडर कर रहे हैं. ओके, विच इज सोल्ड फॉर ₹900. सेलिंग प्राइस ₹900 है उसकी. ओके, तो हाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, देन अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला 80/100. ओके, यानी आउट ऑफ 100 अगर 100 मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 80. सेलिंग प्राइस 80. ओके, तो हमें एग्जांपल में सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 900, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस. तो देन इट इज X. अब देखो, ये एक्सप्रेशन लिखते वक्त क्या ध्यान में रखना है, ये क्या है, टोटल प्राइस, यानी ये सेलिंग प्राइस, ये टोटल प्राइस, सेलिंग प्राइस. अगर यहां पर टोटल प्राइस अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यहां पर भी ये टोटल प्राइस का डिनोमिनेटर में आना चाहिए. अगर ये ठीक तरह से अगर आप लोग लिखते हो, देन योर आंसर विल श्योरली 99% इट विल बी करेक्ट, अगर आगे का कैलकुलेशन अगर ठीक रहा तो. ओके, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, फ्रेमिंग एंड इक्वेशन. सो कैलकुलेट इट. ओके, तो x यहां पर लेना है, तो अगर x राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया तो न्यूमरेटर में आ गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आ गया. इज इक्वल टू इधर क्या बचा है, 900. ओके, ये 80/100 वी हैव टू टेक टू अनदर साइड. तो ये 80 न्यूमरेटर में, तो ये कहा जाएगा डिनोमिनेटर में. ये 100 डिनोमिनेटर में, ये कहा जाएगा न्यूमरेटर में. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड 6th and 7th. व्हाट इज रिमेनिंग, ओके, डिनोमिनेटर का एक 0 कैंसिल, न्यूमरेटर का एक 0 कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग,
90 multiplied by 10, sorry, 900 multiplied by 10, it is 9000 and divided by 8. 9000 divided by 8. अगर ये क्या डिवीजन करते हैं तो देन आंसर यू विल गेट 1125. What is this 1125? It is nothing but the selling price. X is equal to 1125. So therefore, sorry, mark price. So therefore answer, the mark price, क्योंकि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 900. ओके, तो मार्क प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. द मार्क प्राइस इज ₹1125. Right? Let us move to example number 4. What is the example given? The mark price यानी printed price of a fan is ₹3000. Okay, fan पर कितनी प्राइस प्रिंट की है 3000. शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट. शॉपकीपर ने डिसाइड किया 12% डिस्काउंट देना है ऑन इट. ओके, देन व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द डिस्काउंट. ओके, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस. ओके, तो वो दुकानदार कितना डिस्काउंट देगा और वो डिस्काउंट कम करने के बाद कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस. ओके, दिस टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. लेट अस राइट द सॉल्यूशन. So what information is given? Mark price is equal to ₹3000. Then discount is he has decided, the shopkeeper has decided discount 12%. Okay, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट? तो डिस्काउंट इज इक्वल टू परसेंट डिस्काउंट. परसेंट डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस. परसेंट डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट? व्हाट ही हैज डिसाइडेड 12%. ओके, 12% मीन्स 12 upon 100. राइट. व्हाट इज द मार्क प्राइस? इट इज ₹3000. राइट. कैलकुलेटेड. डिनोमिनेटर्स 20, न्यूमरेटर्स 20 cancels each other. What is remaining? 12 multiplied by 30 is equal to ₹360. What is this 360? Discount. ये होगा उसका डिस्काउंट. Then we have to find out selling price. जो मार्क प्राइस है उसमें से 360 माइनस हो जाएगा. That is the selling price. So therefore mark price minus discount. What is the mark price? ₹3000 minus discount कितना? We have found out 360. Okay, so 3000 minus 360, answer is ₹2640. Right? Now write the final answer. What is the answer? Discount is ₹360 and then selling price is ₹2640. Right? Let us say example number 5. The mark price of a mixer is ₹2300. A customer purchased it for ₹1955. Customer purchases means what? It is nothing but the selling price. Printed price यानी mark price 2300, selling price 1955. Okay, only just the what is again the words are changed or else meaning is same. ये mark price, ये selling price. Then find the percentage of discount. यानी कितना परसेंट डिस्काउंट दिया for the to the customer. Alright, let us find out. Okay, what information is given? Mark price is equal to ₹2300. This is the information given.
then selling price is equal to rupees 1955. What we have to find out? Discount, कितना डिस्काउंट होना है? डिस्काउंट परसेंट वी हैव टू फाइंड आउट, डिस्काउंट परसेंट. ओके, डिस्काउंट तो सिंपल है, मार्क प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस माइनस करो, डिस्काउंट मिल जाएगा. बट वी वांट डिस्काउंट परसेंट. ओके, तो उसके लिए डिस्काउंट तो फाइंड आउट करना ही है. ओके, तो पहले स्टेप क्या करना है? डिस्काउंट. डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं. हाउ मच डिस्काउंट इज गिवन? देन वी यूज फॉर्मूला फॉर दैट. मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 2300 माइनस कितनी सेलिंग प्राइस? 1955 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिलता है 345. राइट? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट डिस्काउंट. सो देयरफॉर परसेंट डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी 100 रुपीज हाउ मच डिस्काउंट इज गिवन. ओके, सो कितना डिस्काउंट दिया? ओके, उसकी मार्क प्राइस क्या है? अपॉन मार्क प्राइस, यानी टोटल मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया है एंड मल्टीप्लाइड विथ 100, यानी ये रेशो मिलेगा क्या? किसमें? 100 में मिलेगा. और जब 100 में कोई रेशो मिलता है तो दैट इज कॉल्ड परसेंट. इज इक्वल टू हाउ मच डिस्काउंट इज गिवन? 345. व्हाट इज द मार्क प्राइस? 2300. ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, numerators 2 zeros, denominator 2 0 cancels each other. What numbers are remaining? 345 divided by 23. ओके, अगर ये डिवीजन अगर करते हैं तो आंसर मिलता है इज इक्वल टू 15. What? 15. What is this 15? 15 is nothing but the percent discount. So write the answer, final answer here. The discount offered, the discount offered to the customer is how much? 15%. 15%. Right? Okay, this is our final answer. Let us move to the sixth example. A shopkeeper gives 11% discount on a TV set. Hence, a customer gets it for rupees 22,250. Television set, yeah, written in short form TV set, but it is television set. शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया? 11% डिस्काउंट ही ऑफर्ड. ओके, 11% डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को वो टेलीविजन सेट कितने में मिला? 22,250 रुपीज. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट. ओके, शुरू करते हैं. सिंपल है एकदम. तो सोल्यूशन, व्हाट थिंग्स आर गिवन? सेलिंग प्राइस, यानी कितने में भी मिला है कस्टमर को? रुपीज 22,250. ओके, डिस्काउंट कितना ऑफर किया दुकानदार ने? डिस्काउंट ही डिसाइडेड, ही हैज गिवन ऑफर्ड 11%. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? मार्क प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट. राइट? देन लेट कंसिडर करो, लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100. कंसिडर करते हैं 100, तो डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार ने? इज इक्वल टू 11%. राइट? सो देयरफॉर, तो फाइनल डिस्काउंट यानी आफ्टर एवरी 100 रुपीज हाउ मेनी रुपीज डिस्काउंट इज गिवन? डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 100. यानी अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो डिस्काउंट कितना है? 11 रुपीज. ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है? मार्क प्राइस हमने कितना कंसिडर किया है? 100 माइनस 11 इज इक्वल टू रुपीज 89. यानी सपोज इफ द मार्क प्राइस इज 100 रुपीज, देन द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 89. राइट? फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड आउट. अब कंसिडर करते हैं, लेट द मार्क प्राइस
of TV set be rupees X. Then therefore selling price is equal to rupees 22,250 rupees. ओके, तो इक्वेशन कैसे बनता है? एज वी हैव सॉल्व्ड द फोर्थ एग्जांपल. ओके, इक्वेशन कैसे बनेगा? अगर 100 रुपीज मार्क प्राइस है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस 89 रुपीज. ओके, तो अगर सेलिंग प्राइस 22,250 है तो उसकी मार्क प्राइस कितनी? अब देखो, ओके, थोड़ा सा और डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं. अगर सेलिंग प्राइस 89 रुपीज है तो उसकी मार्क प्राइस 100 रुपीज है. तो टेलीविजन सेट की क्या सेलिंग प्राइस अगर 22,250 रुपीज है तो उसकी मार्क प्राइस X. ओके, एंड इन बिटवीन इक्वल टू साइन इज देयर. जस्ट नाउ ओनली सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर. देयरफॉर अब देखो, ये X इधर लेते हैं तो इसका बनेगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू X इधर लिया. ओके, तो ये ऐसा ही रहेगा 22,250 रुपीज. अब ये दोनों हम लोगों को उधर लेना है. ओके, तो ये डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर. ओके, हो गया, एक्सप्रेशन तैयार हो गया. देन मेक द कैलकुलेशन. देन 22,250 माइनस 100. ओके, ये सब अगर पूरा कैलकुलेशन किया तो आंसर मिलता है 25,000. ओके, मैंने कैलकुलेशन करके रखा था. ओके, तो तुम लोग करो. सो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर, द मार्क प्राइस of TV set is rupees 25,000. Right? Okay, total 6 examples are over and the length of the video, it is almost 43 minutes. Okay, इतना ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते. Okay, तो remaining 2 examples I am giving for self study. Simple examples है, ज्यादा कुछ नहीं. ओके, ऐसे जैसे 6 एग्जाम्पल्स है वैसे वो दोनों एग्जाम्पल्स है. यू सॉल्व इट. ओके, वेरी मीन्स इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ओके.